मैंने वादा किया था कि दिसंबर तक हो जाएंगे, लेकिन दिसंबर तक नहीं किया, लेकिन जनवरी से ये लोग काम करना खुद सरेंडर हो गया है कि काम नहीं कर पाए। Going to cancel and terminate the contract. आई रियली वांट कि ये जो स्टेडियम जो है ये बने, जल्द से जल्द बने, और हमारे युवा जो है इस स्टेडियम का उसका प्रयोग करें। हम पैसा पूरा मुहैया कराया था हम स्टेट से, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं कर पाया, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी हम उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का अलावा कुछ है ही नहीं। We are here in Alo of West Siang district of Arunachal Pradesh, and behind me you can see it's an outdoor stadium. And there is a delay of more than 10 years. In 2014, under the Special Plan Assistant (SPA), Arunachal government has sanctioned this project at a cost of 35 crores, and the work has been awarded to TK Consortium Engineering Private Limited. So now the state government of Arunachal Pradesh is going to terminate this contractor TK Engineering and Consortium Private Limited because of the delay of more than 10 years. Especially the youth of Alo town in West Siang district of Arunachal Pradesh, they are suffering, and many youths are now engaged in drugs also because they are forgetting sports because of the delay of this stadium. Only stadium, outdoor stadium, which has to be constructed in Alo. Arunachal government has given several ultimatums, and especially the leaders of West Siang district, they have given several ultimatums regarding this delay of more than 10 years of this outdoor stadium in Alo, which has been sanctioned in 2014 with the huge cost of 35 crore. In 2022, again, state government has sanctioned some more funds for this construction because the SPA has been dealing in 2019, the special plan assistant. This scheme was dealing from the finance department of Arunachal Pradesh, and now Arunachal government, according to sports minister, who had interacted with our India Today, Kento Jini, the sports minister of Arunachal Pradesh, Kento Jini, and the director of sports, Tadar Apa, they also confirmed that they are going to terminate this contractor, TK Engineering and Consortium Private Limited, because of the untimely delay. It's a huge delay of more than 10 years. One has been sanctioned in 2014 and 15, more than 35 crores. Now, the plights of Alo Stadium, the players of West Siang and the players of Alo, they are suffering because of this continuous delay, like football, because Alo is a place for the footballers. People and especially the youth of Alo, they love football, to play football, but because of the delay of more than 10 years, now the youths are suffering. जो हम जानेंगे खिलाड़ियों को इन केंटो जिनी से, जो स्पोर्ट्स के यहाँ के खेल मंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश। स्पोर्ट्स में आलो में भी स्टेडियम, अभी यहाँ तेजू में भी हमने देखा, अरुणाचल ईटानगर में भी, ये स्टेडियम्स को लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल काम चल रहा है या बिल्कुल आपने कहा था दिसंबर तक, आप कहते थे दिसंबर तक हो जाएगा। मैंने वादा किया था कि दिसंबर तक हो जाएंगे, लेकिन दिसंबर तक नहीं किया, लेकिन जनवरी से ये लोग काम करना खुद सरेंडर हो गया है कि काम नहीं कर पाएगा। हमको ऐसा लगता है काम नहीं करना मीन्स अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स, 4 मंथ्स जैसे हो गया, उसको काम नहीं कर रहा है। नहीं तो इसको हम लोग 8 साल तक एक स्टेडियम को आप खुद देखिए, 8-9 साल लग गए। इसमें देखिए, ये सिर्फ आलो स्टेडियम नहीं है, हमारा सिंपू है, तेजू है, 3 स्टेडियम को एक साथ टेंडर प्लॉट किया गया था। इसमें टेंडर प्लॉट करने का बाद ये कॉन्ट्रैक्टर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में करना चाहिए था, लेकिन एक आपको मैं बताऊं आपके माध्यम से, ये एसपीए के तहत सैंक्शन किया गया था। बीच में एसपीए जो है सेंटर से स्टॉप कर दिया। फिर भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सीएम साहब ने बहुत बड़ा दिखाया है कि इसमें हम पैसा पूरा मुहैया कराया था अपने स्टेट से, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं कर पाया, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी हम उसको
स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का अलावा कुछ है ही नहीं। हम उसको जरूर इस बार हम इसमें बहुत बड़ा एक्शन लेने के लिए है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्टर ठीक है, इंजीनियरिंग जो है वो भी समझना चाहिए। तो नहीं कर सकता है तो खुद सरेंडर करना चाहिए। तो क्योंकि ये दिस इज एक स्टेडियम हो सकता है, लेकिन इसमें पूरा स्टेक होल्डर ऑल सोसाइटी इन्वॉल्व है। स्पेशली आपको पता है आलो इज स्पोर्ट्स लवर। आप फुटबॉल कहो, वॉलीबॉल कहो, क्रिकेट कहो, मैंने हॉकी हो, जो भी हो, एक मैंने रुचि रखते हैं आलो का जो डेलीजन ऑफ पीपल। लेकिन 8-9 साल से अभी खेल ना कूद करने का उसमें जगह ही नहीं है। तो उसके लिए सब मायूस है। लेकिन करे तो क्या करे, और सरेंडर भी नहीं करता है। तो हम टर्मिनेशन करने का अलावा भी कुछ जगह ही नहीं रहेगा। वी आर गोइंग टू कैंसिल एंड terminate the contract. That already we have so caused several times to the contractor. The explanation भी ठीक से नहीं दे रहा है। We are planning to terminate the contract. ये आलो स्टेडियम को लेके आप क्या कहेंगे? दिसंबर पार हो गया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी आपके यहाँ के कहा कि हम कैंसिल करवाएंगे एग्रीमेंट जो टेंडर हुआ था। तो आप क्या कहेंगे? अभी तक कंप्लीट है, ये आप लोग पे इफेक्ट पड़ता है, यूथ पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, देखिए आलो स्टेडियम का बात ऐसा है, आलो स्टेडियम तो वैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता है। वो ऑनरेबल मिनिस्टर जिनी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और अभी खुद खेल मंत्री वो है। तो मैं तो, लेकिन बात यह है कि अगर आप स्टेडियम बनेगा तो सिर्फ ईस्ट के लोग प्रयोग नहीं करेंगे, आलो वेस्ट के लोग भी बड़े प्रयोग करेंगे, लिरोवास भी प्रयोग करेंगे। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि ये स्टेडियम बने, जल्द से जल्द बने। बहुत दिनों से चल रहा है। तो कुछ कारण है, वो टीके इंजीनियरिंग ने इस काम को लिया था, तो लिया है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो टीके इंजीनियरिंग का जो मालिक है, मैं असेंबली में मिलता हूँ तो मैं उसको बताता हूँ, सर आप इसको थोड़ा, आप इसको जैसे भी आप टेकअप कीजिए सर, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही जरूरी आलो एरिया के लिए। हालांकि मैं डायरेक्टली उस एरिया का एमएलए नहीं हूँ, लेकिन इस चीज से क्या है कि युवा लोग जो है आलोक में अलग अलग रास्ते में चला जा रहा है। और आपका कंपनी तो बहुत बड़ा कंपनी है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के भी आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो आप एडजस्ट करके इसको कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट 80% तो खत्म हो चुका है, तो ज्यादा बचा नहीं है। तो इसको आप फिनिशिंग कर दीजिए, मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ। लेकिन आई एम श्योर ऑनरेबल मिनिस्टर जिनी साहब से बातचीत और कर रहे होंगे, और किस तरह से इसको खत्म करेगा वो कर रहे होंगे। लेकिन मेरा जिनी साहब के साथ, मैं जब भी जिनी साहब मुझे कहते हैं कि इस इशू पे चलिए हम आगे बात करें, तो मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। और मैं भी मेरे आई रियली वांट कि ये जो स्टेडियम जो है ये बने, जल्द से जल्द बने, और हमारे युवा जो है इस स्टेडियम का उसका प्रयोग करे, आनंद ले सके।